एक्चुअली आज जो स्ट्राइक होती बहुत प्रोब्लेम होची माने जीवा आसिया पई समस्त को ये खाली ओनली गवर्नमेंट बस चलुची आ किछि बस चलुनी तापरे एमिति हवा द्वारा पब्लिक को भी प्रोब्लेम होची ये ऑफिस आ गाड़ी चलिया पई जो रखिछंती किंतु कोन तार किछि तो बेनिफिट ही नाही। Actually, traders are harassed. Traders are harassed after the GST, they are harassed. And the way the government of India is imposing taxes on them in other sectors, sales and other things. And the compliance report in GST and other things so difficult at times. Small businessmen are feeling difficulty in compliance with the GST requirement. And one nation, one tax. How has the nation progressed under this one tax formula? I don't think so. All states are complaining that we are not getting our GST revenue. I don't think central revenue has increased much more than what they were thinking. Not that? No. You have seen the last budget. Situation is not that good. But they still insist on it and go on harassing the businessmen in general, and they are harassed really harassed by the government's method of controlling them, method of harassing them. Whereas in this country, if you see the big ones, people are they themselves saying this is letting Ambani or they are getting away with everything. They don't have any difficulty. But the smaller businessmen, if you look at, even I am here in front of Bapuji Nagar. Most of the traders in Bhubaneswar are in Bapuji Nagar. They tell me how they are feeling harassed under this regime. Though many of them are supporters of Narendra Modi, this government, but they now feel they are supporters of Narendra Modi not for anything else, but they think that here is a regime, perhaps we can protect the nation better than previous regime. That they feel. But as far as the harassment to business community is concerned, they are now as reached a dead end. They say that it is impossible for us to run the business. In the pandemic, they suffered the worst, as you know, but there was nothing for them. Now this diesel and petrol prices, prices of every commodity is rising every day because of the cost of petrol and diesel. A milkman who has kept some cows providing milk to us, he said that we can't provide you the milk at the same rate, it has to go up because the food that we give to the cows, that price has gone up because of the transport cost. It has gone up like anything. So where do you get that money? If I try to give the milk in the same rate that I was giving 2 months or 5 months back, I have to sell all my cows. So that is the situation. That is the situation in business community. That is the situation. Even I'm going to this Odisha's biggest vegetable market in Unit 1. There also everybody is saying most of the price is because of the transport cost. Most of the price rise is because of transport cost. Many of the farmers who were coming to this from the collecting vegetable from their own field, they were coming through motorcycles and scooters and all this. So the cost has become so much. They are feeling now there is no use. Let us go to our field and take whatever you can, but we can't bring because the cost has become so much for them. So I think they are rightly have gone for the strike. I don't think the government will realize or not, because it can be dealt and managed by the central government. The state government cannot do anything. State government has, because as you know, and taxes and other things, particularly petrol and diesel, state government has some share. But it has to be done because the central government, which is responsible for creating such a situation where the cost of everything is going up. And even the RBI governor has said it to the government of India, you reduce this tax, otherwise inflation we cannot check. Now it is already 5.5, it will steadily rise. When the inflation is 5.5, the people who are kept money in the bank
are getting the interest of 3%, 4%. Just imagine. So such a scenario, it is the duty of the Reserve Bank to see that inflation is controlled. It is the duty of the Government of India to see that inflation is controlled. And because of their policy, taxation policy, in the name of one nation, one tax, what they are doing, and sales and other things, they are virtually responsible for increasing the not only the prices of essential commodities. When every family feels the pinch out of it, every family who has two boys who are going to colleges, you see the amount of money he has to spend every day on their scooter or on their transport. Just imagine it, everybody's family is burdened with this. Yeah. So this has to be decided. Recently there was a meeting of Niti Aayog where all chief ministers were. Why this issue was not raised in Niti Aayog, I am surprised. This had been decided by the Niti Aayog, what policy should have been adopted on this. भारत में बढ़िया व्यवस्था अच्छे सरकार लाभ कर दीजिए सरकार लाभ ही जाए ये मैंने सरकार लाभ कि आम सरकार लाभ कर दीजिए आ कोरोना आम घर बैला कोरोना कमिजनी भारत में माने कोरोना कमिज सरकार लॉकडाउन कर 4 मास रखला बर्तमान आम जो बंद कर ये कहते आम सरकार को हल्ई देवु सरकार टे जड़ा तेल मुंडे लगे बही आऊ। मैं प्रदीप कुमार साहू हूँ। मैं भुवनेश्वर व्यवसायी महासंघ जो है उसका प्रेसिडेंट हूँ। सर क्या कहेंगे आज ये जो बंद हुआ है क्यों हुआ है? एक्चुअली आज जो बंद हुआ है वो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CIT उन्होंने वो आह्वान दिया है कि जो GST का जो है जब GST प्रचलित हुआ है तो उसमें बहुत सारा अमेंडमेंट आया है और एक छोटा व्यापारी वो अमेंडमेंट को नहीं जानता। अगर आप हर दिन एक अमेंडमेंट लाएंगे तो छोटा छोटा जो व्यापारी है कारोबारी है वो प्रभावित होंगे। तो हमारा जो डिमांड है कि GST का सरलीकरण हो, सिंप्लीफिकेशन हो, और दूसरा तरफ और एक डिमांड है वो E-वे बिल जो है वो E-वे बिल का जो व्यवस्था है जो इसमें से बहुत सारा पाबंदी है। जैसे आप थोड़ा सा डिले हो जाता है तो 200% फाइन लगता है। तो ऐसा बहुत सारा इसमें प्रोविज़न है जिसको सरकार तुरंत वापस लेना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा है ये जो ऑयल का जो फ्यूल प्राइसेस रेगुलरली हर दिन बढ़ता जा रहा है और सरकार का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है जो ट्रांसपोर्टर्स है उनको भी दिक्कत होता है वही रेट में ऑपरेट करना, उनको दिक्कत होता है, जो व्यापारी है उनको भी दिक्कत होता है क्योंकि माल का रेट बढ़ जाता है, और जो कंज्यूमर है उनको भी परेशानी होता है। तो ये जो फ्यूल प्राइस इंक्रीज है, E-वे बिल है, और जो GST जब लाए थे सरकार तो इसका मेन मोटो था कि टैक्स का सिंप्लीफिकेशन हो। जब जिस देश में टैक्स जितना सिंप्लीफाइड है वो देश इतना डेवलप्ड है। हमारा कंट्री में टैक्स का इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि कोई आदमी टैक्स के दायरे में आना नहीं चाहता। चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे GST हो, कोई भी टैक्स हो, वो सब इसको ऐसे एक परेशानी मानते हैं, क्यों हम टैक्स के अंदर आएंगे। तो इसीलिए GST का सिंप्लीफिकेशन हो, E-वे बिल में जो प्रोविजंस हो, जो फाइन वगैरह हो, उसको तुरंत वापस लेना चाहिए। और सबसे बड़ा ये है जो हमारा फ्यूल प्राइसेस डेली इंक्रीज कर रहा है उसको भी तुरंत सरकार का कोई इसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। सर एक बात है कि जब पिछले साल जब भारत सरकार अपना गादी संभाले थे तो वो बोले थे 1 नेशन 1 टैक्स करके, लेकिन अभी जो आप बोल रहे हैं कि ये जो सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, ऑयल के ऊपर इतना टैक्स आ गया है। आपको पता है शायद कि सर डीजल के ऊपर 800% टैक्स लेते हैं और पेट्रोल के ऊपर 250% टैक्स। तो ये जो टैक्स आ रहा है इसमें साधारण आदमी जो है, आप और हम जैसे हैं, तो हम उसके ऊपर क्या ये करेंगे? मतलब हमको इसके ऊपर तो पता नहीं है, आम आदमी को तो इसके ऊपर पता नहीं है। जो लेबर बुजुर्ग आदमी है वो तो घूम रहे हैं अपने काम पे। तो इसके लिए ये बंद होने से क्या असर आएगा सरकार के ऊपर? देखिए, ये जो आपने बोला है ये क्या है, ये ऐसा मुद्दा है, ये जो ऑयल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस का मुद्दा है, ये ऐसा एक मुद्दा है कि स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि स्टेट वैट कम करे। आपको एक बात सबको ध्यान देना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो,
फ्यूल प्राइस जो इंक्रीज कर रहा है उसमें स्टेट का जितना टैक्स है, आप तो जीएसटी कर दिया, वन नेशन वन टैक्स, फिर वैट कहाँ से आ गया? तो स्टेट का जो टैक्स आता है, जो वैट लगा, इसीलिए इसको वापस नहीं किया क्योंकि उसमें स्टेट का रेवेन्यू कम हो जाए। क्यों? लेकिन अभी क्या है, अभी जीएसटी होने के बाद रेवेन्यू इतना बढ़ गया है सरकार का कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स ऑपरेट कर सकते हैं। और जो दोनों एक दूसरे को दोष देते हैं, तो ऐसे करिए ना कि आपका जितना सेंट्रल जितना टैक्स ले रहा है वो आधा कर दे और स्टेट जितना ले रहा है वो आधा कर दे, तो 50 के करीब आ जाएगा। अगर सिर्फ वैट कम हो जाएगा तो ये 40-50 रुपये में आ जाएगा। तो इसीलिए जो वन नेशन वन टैक्स जो फार्मूला है वो अभी तक लागू नहीं हो पाया है क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और दोनों को दोष देते हैं। तो इसीलिए तो दोनों को ये चिंता की विषय है कि स्टेट गवर्नमेंट का भी जिम्मेदारी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जिम्मेदारी है। तो आप आधा आधा कर दीजिए ना। आप बोलते हैं कि उनका वो रेवेन्यू ज़्यादा ले लेते हैं, ये बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा ले लेता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का जितना है इसको आधा कर दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना रेवेन्यू वो इसमें से जो टैक्स है उसको आधा कम कर दीजिए, तो ये फ्यूल प्राइस कम हो जाएगा। और फ्यूल प्राइस कम होने से क्या होता है, जितना सब गुड्स है उसका भी प्राइस कम हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट। आज देखिए, आज CIT जो बंद का आह्वान किया है, इसको समर्थन दिया है ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन। वो क्यों दिया है? क्योंकि वो भी प्रभावित है और ये जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है उसमें से हर एक आदमी प्रभावित होता है, चाहे वो डेली वेज मजदूर हो या छोटा व्यापारी हो, कोई सैलरी एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, सब इसमें परेशान है। तो सरकार को कुछ ना कुछ इसमें करना चाहिए। सर, आप इसमें क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, पूरा आम आदमी को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो आज जो बंद हुआ है, CIT जो बंद का आह्वान किया है, वो सिर्फ व्यवसायी या व्यापारियों के लिए नहीं है, वो आम आदमी के लिए है क्योंकि हम सब कंज्यूमर है। और जो व्यवस्था है, जो अगर GST का बार बार इसको आप अमेंडमेंट करेंगे और इसमें तो ये गुड्स का प्राइसेस ऐसे भी बढ़ेगा और टैक्स को डेली आप अमेंडमेंट करेंगे। आज जो 5% है, कल इसको 10% करेंगे, तो इसमें से परेशानी ज़्यादा बढ़ेगा। और ऐसे आप कर रहे हैं कि एक छोटा व्यापारी जो अपना व्यवसाय में ध्यान देना चाहिए, उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखना पड़ेगा ये सब करने के लिए। ऐसा आप टैक्स सिस्टम बना दिया, तो वो जो इसके लिए जो खर्चा करेगा वो किससे लेगा? वो आम आदमी से लेगा। तो अल्टीमेटली आम आदमी का जेब से ही जाता है। लेकिन इसको सबको समझना चाहिए, आम आदमी को भी समझना चाहिए क्योंकि ये जो बंद हुआ है ये कोई पॉलिटिकल बंद नहीं है, ये एक गंभीर मुद्दा है और इस विषय में सबको चिंता करना चाहिए। सर, आपको माने ये जानते हैं कि 24 घंटे के बाद ये जो असर आएगा सर सरकार के ऊपर? जरूर असर आएगा क्योंकि पूरे भारत के 40,000 व्यवसायी संगठन जो है और 8 करोड़ व्यवसायी है उसमें शामिल है और एक मैसेज ऑलरेडी गया है। सरकार भी जरूर, हमको ये विश्वास है, सरकार इस विषय में जरूर ध्यान देंगे और कुछ ना कुछ जरूर बदलाव करेंगे। थैंक यू। Please like, share and subscribe to our channel, and your comments are valuable as well.